ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں یا شوکا ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو 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 گڈ ایوننگ غالب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا غالب بھائی، مجھے ایک بات، یہ جو آئے تھے صاحب، ان کی میں پوری بات تو نہیں سن سکا، مگر ان کی بات سے چھوٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان کے ملک میں، پاکستان میں یا جن ملکوں میں یہ اسلام کا غلبہ ہے، یا جو اسلامی ملک ہیں، ادھر مائنورٹیز کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہوئے پھر ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کس لیول پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں پھر؟ ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جہالت جو ہوتی ہے نا، اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں لائک آئی بلانگ ٹو کرسچن کمیونٹی، تو مجھے جب ہم لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں اپنے ادھر لوگوں کو فورسلی کنورجن کے معاملات ہوتے ہیں یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں تب یہ انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ ہم نے اس سے سوری آپ نے اس سے پہلے کبھی بات اس کے اوپر کی ہے یا نہیں، مگر اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر اسلام نے یہ اپنے کیا سے کہتے ہیں بادشاہت اپنی فیملی سے باہر دی ہے، یا بڑا ایک یہ ووٹنگ اور یہ سب کا نظام تھا، تو پھر تو آئی ایم سوری ٹو سے اسلام پوری دنیا کو بڑا غلط ایک جھوٹ بولتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نوٹ کریں تو جتنے چاروں خلفائے راشدین تھے وہ حضور پاک کے یا تو بڑے قریبی تھے یا رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے؟ اب حضور کے بعد اگر ان کے خاندان میں ہی ساری حکومت رہی ہے، ان کا کوئی کبھی کوئی ان کا سسر ہے، کبھی کوئی ان کا دماد ہے، کبھی ان کی بیٹی کا ہسبینڈ ہے، کبھی یہ ہے، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو عدل دیا؟ اسلام تو اپنے گھر میں اپنے گھر سے بادشاہ نہیں ختم کر سکا۔ ہاں ایک بات ہے نا، اب مین مسئلہ تو یہ ہے کہ جب حضرت محمد کی وفات ہوئی تو اس کے بعد انصاری جو تھے وہ خلیفہ اپنا بنانا چاہتے تھے، انصار، جی ٹھیک ہے، جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو ابو جی بکر اور عمر دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا کہ رسول نے کہا تھا کہ خلیفہ قریشی اور مہاجر ہوگا، ہوں مہاجرین میں سے ہوگا۔ تو پھر وہ بات یہ مان گیا کیونکہ رسول نے یہ کہی ہوئی تھی بات، تو انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا۔ مگر علی اس صحیح، بات پہ خوش نہیں تھا۔ اب جیسے لیڈی آف ہیون جو فلم آئی ہے وہ ساری اسی جھگڑے کے اوپر ہے، نام اس کا فاطمہ پہ رکھ دیا، مگر اصل میں وہ خلافت کا جھگڑا پورا جو ہے نا اس فلم میں جی دکھایا میں نے ہوا ہے، دیکھی تھی اگر وہ۔ آپ نے دیکھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس فلم میں جی کیا ہے کہ جی علی جو ہے وہ نہیں تھا مان رہا کہ یہ خلیفہ ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ یہ خلیفہ ہوگا ابو بکر۔ ہوں ٹھیک ہے، مگر آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا گیا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے علی کو بھی بٹھا دیا، اور جو لوگ علی کے سپورٹر تھے ان کو بھی بٹھا دیا، اور علی کے اوپر ظلم شلم شروع ہو گیا، اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں اسی طرح سے دکھتی ہیں جو کہ اس میں دکھائی گئی ہیں۔ پھر اب سنیوں کا یہ ہے کہ جی خلفائے راشدین جو چار تھے وہ حضرت علی کے سب سے امپورٹنٹ صحابہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے امپورٹنٹ حضرت صحابی جو محمد کے کہ حضرت علی کے؟ حضرت محمد کے اوکے حضرت محمد کے سب سے امپورٹنٹ صحابہ تھے، جن میں سب سے پہلا ابو بکر صدیق تھا، اور ابو بکر صدیق تھا بھی بڑا امپورٹنٹ کیونکہ علی تو ابھی بچہ تھا جب سے وہ سپورٹ کر رہا تھا حضرت محمد کو۔ ٹھیک ہے، پھر عمر آیا، عمر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ صحابی تھا، تو اس نے ان لوگوں نے حضرت محمد کی بڑی مدد کی تھی اسلام کو پھیلانے میں، اور حضرت محمد کی پروٹیکشن بھی ان لوگوں نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ نے ان لوگوں کو ہی بنایا اپنے بعد خلیفہ، اور رسول اگر چاہتا بھی تھا کہ علی بنے اور یہ نہ بنے تو تب بھی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایک تو بات ہے کہ جب رسول نے یہ کہا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا تو یہ تو ریسزم ہے سیدھا سیدھا۔ رسول نے تو خود ہی قریشیوں اور انصاریوں کے درمیان میں فرق کر دیا، تو رسول اللہ کو تو آپ ریسسٹ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ اگر
समझ लें कि एक ग्रुप वाइट और दूसरा ब्लैक है, तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं जी खलीफा सिर्फ वाइट्स में से होगा, ब्लैक्स में नहीं होगा, ठीक है, और उनमें से बन गया। फिर इसके बाद मदीने की तमाम सल्तनत हमेशा महाजरीन के पास ही रही, चाहे वो माविया हो, माविया बाद में बन गया, फिर 3-4 खलीफे ये हुए, फिर हसन हुआ, फिर माविया हुआ, माविया के बाद फिर और जितने भी चलते रहे, फिर मक्के की तरफ खिलाफत चली गई, ठीक है, चलते चलते। और इवन के जो इमाम मेहदी है वो भी आले रसूल में से आएगा, ठीक है, यानी कोई भी बंदा बाहर से आले रसूल से नहीं आएगा, वो भी इमाम मेहदी जो है वो भी आले रसूल में से, और वो अहले बैत की आगे नस्लों में से होगा, सैयद ज्यादा होगा, ठीक है। और यही चीज, आई एम सॉरी टू कट यू, यही चीज हमें क्रिश्चियनिटी से भी मिलती है। अगर हम बाइबल को देखते हैं कि आदम से लेकर अगर यीशु तक हम देखते हैं, वो भी सारे आदम की नस्ल से ही है। आगे यीशु के बाद भी अगर दोबारा यीशु ने आना है तो कोई और नहीं आ सकता, वही आ सकते हैं। तो ये मतलब व्हाट द हेल इज दिस यार, कभी कभी तो ये समझ से बाहर चीजें होती हैं। ये आगे वो मसीह ने बनी इसराइल में से आना था, वो एक बात थी, मगर आपको एक और भी बात बता दूं, जो हकीकी मसीह थी ना असल में, सॉरी दोबारा बोलिएगा, जो असली मसीहत थी, जी जी, जो यीशु वाली मसीहत थी और यरूशलेम वाली मसीहत थी, ये जो हमारे पास अभी जो मसीहत है जो दुनिया में मानी जाती है, वो पौलुस की मसीहत है, पॉल की। सही सही है। जो असल मसीहत थी, जो यरूशलेम वाली मसीहत थी, उसमें यीशु के बाद उसका लीडर कौन था, आप गेस करें जरा। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। होगा आपके ख्याल में पीटर? आई थिंक सो कि उन्हीं के 12 शागिर्दों में से ही कोई होंगे। नहीं, पीटर नहीं था, जेम्स अच्छा। था। और जेम्स कौन था? वो यीशु का सगा भाई था। हाँ सही। और यीशु के 4 भाई थे। पौलुस रसूल का जो खाता है थेसलोनियंस वाला, थेसलुनीकियों वाला है, या मेरे ख्याल गिलतियों वाला है, उसमें वो यीशु के भाइयों का जिक्र करता है पौलुस। अच्छा। नहीं, शायद करंथियों के नाम जो है, पहला खत, पहला करंथियन जो है ना, उसके अंदर वो यीशु के भाइयों का जिक्र करता है। तो कैथोलिक तो बिल्कुल ही जो है ना उनकी छुट्टी है, क्योंकि कैथोलिक तो ये मानता ही नहीं है ना कि यीशु के कोई बहन भाई थे, ठीक है, मगर अंजील भी इस बात को मानती है कि यीशु के सिर्फ भाई नहीं थे, यीशु की बहनें भी थी। और यीशु के 4 भाई थे जिनके नाम भी हैं। एक तो जेम्स है, जेम्स को उर्दू में यहूदा लिखते हैं, ये एक उसका खत भी है यहूदा का, ठीक है। हाँ। वो दूसरा यीशु के एक और भाई का नाम शमऊन था। और जब फिर जो पौलुस है वो अमाल की किताब में 2 बार जाता है और वो जेम्स और पतरस से मिलता है, ठीक है। और यरूशलेम की कलीसिया का जो हेड होता है वो जेम्स होता है। और जेम्स के बारे में ये लिखा गया है तारीख में कि वो जो था वो, अब ये जो शुरू के क्रिश्चियन थे ना, ये शरीयत को रद्द नहीं थे करते, ये शरीयत को मानते थे, ठीक है। तो यीशु के बाद भी जेम्स ही लीडर था। जेम्स जब फिर मरा है तो उसके बाद मेरे ख्याल में पतरस लीडर बना है। अच्छा सॉरी, इधर जो क्रिश्चियंस है उनकी साइड से एक चीज, 2 इधर मेरे आपसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप क्लियर करें कि यीशु ने भी जैसे खुद बोला था कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, तो उधर क्या शरीयत फुल स्टॉप नहीं हो जाती है कि वहां पे तो शरीयत खत्म हो गया, फिर शरीयत आगे किस तरह प्रिवेल करती है? अगर हम आगे उस शरीयत को लेके चलते हैं तो इसका मतलब हम यीशु की बातों से इनकार करते हैं, और अगर हम यीशु की बातों से इनकार करते हैं तो हम तो क्रिश्चियन ही नहीं रह सकते हैं फिर। नहीं, मगर ये सब कुछ उल्टा है ना। नए अहदनामे की या न्यू टेस्टामेंट की जो सबसे पुरानी किताबें हैं वो कौन सी हैं? जो है वो पहली 2 किताबों में से, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद है, मैंने आपकी वो वीडियो देखी हुई है, मतलब मुझे नहीं, मगर उसमें में मैंने अंजीलों की बात की है, मैंने पौलुस की बात नहीं की। पौलुस पे मैं दोबारा स्ट्रीम करूंगा, एक स्ट्रीम अलग करूंगा पौलुस पे। जी थैंक यू। सबसे पुरानी किताबें पौलुस के साथ खाते हैं। अच्छा। पहला थेसलोनियंस या थेसलुनीकियों, फिर पहला करंथियन और दूसरा करंथियन, गलतियों के नाम, रोमियो के नाम, और एक खत और है। 7 खत जो है वो असल में पौलुस के अपने हैं। सही है। फिर 5 खत ऐसे हैं जो कि पौलुस के फॉलोअर्स ने लिखे हैं। ये जो 7 खत हैं ये 50 से 60 ईस्वी के दरमियान लिखे गए हैं। फिर इसके बाद जो बाकी के 5 हैं वो
80 से 120 70 से 90 के दरमियान लिखे गए हैं, और 2 खत जो है वो टोटली जाली हैं, वो कभी पलूस ने लिखे ही नहीं थे। वो है तीतस का और दूसरा तमिथियस का। तमिथियस और तीतस का जो खाता है वो पलूस ने कभी भी नहीं लिखा। पलूस बड़ी देर का मर गया हुआ था तब, पलूस के मरने के भी 50 साल बाद ये 2 खत लिखे हैं। तो सबसे पुरानी जो किताबें हैं न्यू टेस्टामेंट में वो असल में पलूस के खत हैं, और पलूस के खतों में वो खुद ही ये बता देता है हमें कि उसका झगड़ा चल रहा होता है पतरस से और जेम्स से। सही है, ठीक है। और उसका झगड़ा किस बात पे चल रहा होता है? क्योंकि वो शरीयत के ऊपर अमल करते थे और वो ये नहीं समझते थे कि शरीयत खत्म है। और जो पतरस का भी खाता है ना असल में न्यू टेस्टामेंट में, वो भी पतरस ने नहीं लिखा, वो भी जाली खाता। सही है, सही है। अच्छा, इधर तो ये असल में जो क्रिश्चियनिटी हम मानते हैं ना वो यीशु की क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो पौलुस की क्रिश्चियनिटी है। सही है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि जब अगर हम भाइयों की बात करते हैं तो लाइक मैंने इससे पहले एक दफा क्वेश्चन किया था एक प्रीस्ट से, तो उन्होंने मुझे इसका आंसर ये दिया था कि यीशु मसीह ने जब वो स्लीप पे जब उनकी डेथ होने वाली थी तो उन्होंने तब जो है वो जो है अपनी माँ को बोला था कि ये तेरा बेटा और तू इसकी माँ है। तो उनका जो लॉजिक था वो ये था कि अगर यीशु के और बहन भाई होते और अगर वो यीशु के माँ की कफालत करते, क्योंकि तब तक तो उनके फादर की डेथ हो गई हुई थी, तो वो कहते हैं कि अगर वो उसकी कफालत करते होते तो यीशु को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि ये आज से तेरा बेटा और तू इसकी माँ है, क्योंकि उन्होंने तो उसको उसके सुपुर्द किया था सिर्फ इस वजह से कि वो इन फ्यूचर उनकी हिफाजत करे, उसको माँ की तरह रखे। हाँ, मगर ये कैथोलिक प्रीस्ट होगा जिसने आपको कहा होगा। नहीं, वो था ये यहोवा विटनेस वाले। चलें जो भी था वो, मगर मसला ये है कि वो इस बात को ओवरलुक कर रहे हैं कि पौलुस खुद इस बात का जिक्र करता है कि पतरस और यीशु के भाई अपने साथ कुछ बहनों को लिए फिरते हैं जो कि काम करती थी, और उनकी कमाई से फिर वो खुदा का काम करते थे आगे से। यानी ये सिर्फ तबलीग करते थे और वो कपड़े वगैरह सी के और इस तरह के काम करके और इनकी फाइनेंशियल हेल्प करती थी, जिससे फिर ये आगे अपना काम चलाते थे। ठीक है। तो यीशु के भाइयों का जिक्र बार बार है न्यू टेस्टामेंट में, कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि यीशु के और बहन भाई थे। सर मैं एक इधर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बाइबल के मुताबिक हम सारे बहन भाई हैं, तो ये कैटेगोरिकली उसके भाइयों को नहीं बल्कि कैटेगोरिकली उसके भाइयों को कहा गया ना, कैटेगोरिकली उसके भाइयों को कहा गया ना, कैटेगोरिकली कहा गया। पौलुस के खतों में है ये अंजीलों में नहीं है। अंजीलों में भी है, अंजील में भी है, मरकस की अंजील में है, मगर पौलुस के खत तो इस बात को 100% बता देते हैं कि यीशु के भाई जो हैं। और फिर दूसरी बात है, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जिनके अंदर पता चलता है कि यीशु के भाई थे। हाँ, वो एक जगह वो भी है जहाँ पे वो बैठे होते हैं तो कोई आके उनको बताता है कि तेरी माँ और तेरे भाई हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो मेरे साथ बैठे हैं यही मेरे बहन भाई हैं। तो ये भी एक रेफरेंस हमारे पास है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।